हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम बात किए थे बायोमास एनर्जी क्या है, व्हाट इज़ द बायोमास एनर्जी और इसके बेसिक सोर्सेस ऑफ बायोमास एनर्जी के बारे में बात की गई थी। कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोमास एनर्जी, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ बायोमास एनर्जी, इसके बारे में बात की गई थी। फिर हमने बात की थी प्रमोशन एफर्ट्स इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव ऑफ मास प्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, power generation in solar industry, baggage based on a cogeneration plants, and wood classification of system, wood gasification system। इसके बारे में हमने बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे पहले एग्जाम्पल्स ऑफ बायोमास कंबशन। फर्स्ट बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ बायोमास कंबशन बेस्ड पावर प्रोजेक्ट। तो जैसे कि हम लोग पता है कि बायोमास एनर्जी काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइजेशन होने लगा है। तो बायोमास एनर्जी टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज द प्लांट्स ऑफ फ्यू वाट्स टू अ फ्यू 100 मेगावाट। और इनकी बात करें अगर डोमेस्टिक की, तो डोमेस्टिक चूल्हा जो बर्निंग वुड या चारकोल इज़ रेटेड लेस देन 2 किलोवाट एंड लार्ज अर्बन वेस्ट इंक्रिएशंस ब्रैकेट में कंप्लीट burning to ashes power plant is usually rated 150 MW. Recently, 3 biomass combustion based power projects have been implemented. One is a 6 megawatt, one is the 6 megawatt Prospecis based projects in Andhra Pradesh. Other part की जाए तो 5 megawatt Rise Husk based project in Madhya Pradesh, and the last one in cane trash and bag is based on 12 megawatt private sector project in Tamil Nadu. So all these projects have been subsidized by the Ministry of Non-Conventional Energy Sources. आगे बात करते हैं already the some 32 biomass combustion based power projects with a total capacity of roughly 145 megawatt and have been installed in 10 states for supplying power to the grid. Roughly 700 million units are being fed to the grid energy year, saving 0.4 metric ton of the coal and reducing 1 metric ton of carbon dioxide emission into the atmosphere. Next बात करते हैं, from this fact it is also clear how environment friendly technology is the biomass energy. Recently one National Bioenergy Board has been set up for evolving policies, guidelines and the direction to launch for the proper treatment of urban and industrial waste and the resultant recovery of energy from the urban and industrial waste sources involving the technology of biomethane. So for 3 million family type biogas plants based on the cattle dung have been set up with the estimate potential of 12 million. Uttar Pradesh being on the top. बायोमास कन्वर्जन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो बायोमास कन्वर्जन टेक्नोलॉजी कैन बी क्लासिफाइड इनटू जनरली अंडर 4 मेजर कैटेगरी। फर्स्ट एनारोबिक डाइजेशन, सेकंड पायरोलिसिस, थर्ड combustion and the fourth in gasification. First anaerobic digestion, second pyrolysis, third combustion and the fourth one is the gasification. अब लोग पहले बात करेंगे एनारोबिक डाइजेशन के बारे में। तो एनारोबिक डाइजेशन इज एक्सटेंसिवली यूज इन आवर कंट्री फॉर high moisture organic materials like dung, also the treatment of industrial and municipal wastes and distillery effluent. The bacterial active process has a long cycle time like 4 to 6 weeks at a time and long rejection time with moisture content resulting in a relative large plant size. Next हम लोग आगे बात करेंगे pyrolysis of biomass in charcoal making। तो इसके बारे में बात करते हैं, तो इसका जो बेसिक इसके अगर हम देखते हैं टर्मिनोलॉजी, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे। तो पहले यहाँ बात करते हैं कि पायरोलिसिस ऑफ बायोमास इन चारकोल मेकिंग। तो पायरोलिसिस का यूज़ हम लोग करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गैसियस लिक्विड और सॉलिड फ्यूल्स फ्रॉम बायोमास।
किस हमने ऑप्टेन करने के लिए? पायरोलिसिस इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड फ्यूल्स फ्रॉम बायोमास. चारकोल मेकिंग अ निब या ओवन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पायरोलिसिस ऑफ बायोमास. और लिक्विड फ्यूल्स ऑल्सो कैन बी प्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ पायरोलिसिस. तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पायरोलिसिस हमने देखा है यहाँ पर. आगे बात करते हैं जो बेसिक कंबशन है, कंबशन ऑफ बायोमास इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की. तो इसमें जो पॉइंट आते हैं कि कंबशन इज़ द बायोमास प्रैक्टिसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हीट रिजल्टिंग इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, एंड बाय बायोमास कंबशन अल्टरनेट फ्यूल्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस. आगे बात करते हैं बायोमास गैसीफायर एंड इट्स एप्लीकेशन. तो बायोमास गैसीफायर एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मास गैसीफायर इज एम्प्लॉयड फॉर वेराइटी ऑफ थर्मल एप्लीकेशन. बेसिकली क्या है, थर्मल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ हो रहा है, और विद द कैपेसिटी रेटिंग ऑफ 150 kg बायोमास पर आवर. एंड द लोअर कैपेसिटी ऑफ गैसीफायर्स कैन बी यूज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लाइक सिल्क, रीलिंग, डाइंग एंड ड्राइंग एंड कम्युनिटी कुकिंग etc. The higher capacity gasifier can be used in industrial applications via manufacturing of carbon dioxide या MgCl2 process heat requirement for the industrial like cement and sugar. बायोमास गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स फेलियर इन इंडिया के बारे में बात करते हैं. तो बायोमास गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ अ हाई रिवेलेंस to India, where the rural energy scene is characterized by the low efficiency of biomass utilization or low availability of electricity for irrigation pumping. बात करते हैं मोस्ट ऑफ द बायोमास गैसीफायर जो प्लांट्स हैं और वुड है, चिप बेस्ड हैं, और विच रिक्वायर्स अ कटिंग ऑफ वुड टू प्रॉपर साइज. स्टिल द बायोमास बेस्ड गैसीफायर टेक्नोलॉजी हैज़ नॉट बी पॉपुलराइज अप टू द मार्क इन इंडिया because of the its operation problem with higher operational cost. Sometimes even the cost of generating electricity from the gasifier becomes higher than purchasing cost from the electricity board. Next, जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ रेट्स है ऑफ द इंडस्ट्रीज अबाउट ₹3 per kilowatt hour, and whereas the operational and maintenance of cost of gasifier based on the power generation only is about 2.50 per kilowatt hour. तो यहाँ पर उन्होंने बात करी कि एग्जाम्पल ऑफ बायोमास कंबशन बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में. फिर उन्होंने बात करी बायोमास कन्वर्जन टेक्नोलॉजी, जिसमें कि एनारोबिक डाइजेशन, पायरोलिसिस, कंबशन एंड गैसिफिकेशन. पहले उन्होंने बात करी कि एनारोबिक डाइजेशंस, पायरोलिसिस ऑफ बायोमास इन चारकोल मेकिंग, पायरोलिसिस ऑफ बायोमास इन चारकोल मेकिंग, कंबशन ऑफ द बायोमास ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड बायोमास गैसीफायर एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग बात किए. बायोमास गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स फ्यूचर इन इंडिया. नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायोमास गैसिफिकेशन क्या है, और साथ ही साथ बात करेंगे गैसीफायर यूज इन टी ड्राइंग एज इन राइस हस्क, गैसिफिकेशन, बायोगैस फ्रॉम बायोमास एंड बायोगैस डिजास्टर्स के बारे में. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग.